A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new poem from our literature portion, that is from the book Flamingo, that is Roadside Stand. In this video we will discuss about the poet as well as line to line explanation of this very poem, and we will also talk about the significance of its title and how this very title indicates the miseries of life, especially from the poor people. So, first of all, let's talk about the poet. Here, the Roadside Stand has been written by Robert Frost. Robert Frost, you can consider him as one of the proficient and magnificent, you can say, poet of the 20th century, because he got born in 1874 and he got died in 1963. Remember this? When Robert Frost got born, he was born in 1874 and he got died in 1963. Right? He is a highly acclaimed American poet of the 20th century. So, what is the nationality of our Robert Frost? Our Robert Frost's nationality is he is an American poet. That means he belongs to America. So, Robert Frost wrote about characters, people, and landscape. He is such a kind of person who usually feel himself so much attached to the countryside area. Countryside area means the village area, the landscape where the people and the landscape are seems to be real. They are not fake like the city life. So his poems are concerned with the human tragedies and fears. Especially here Robert Frost in this poem will concern all these things which we are talking about in the about the poet. So here his reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens. It means here Robert Frost will show a kind of human side, you can say, and he will show some kind of concern, and he will react to the complexities of the life in which he just accept all these things, like the burdens of people, and he will talk about each and everything which will bother poor people, right? So here he choose the topic that is a roadside stand. Stopping by the woods on a snowy evening, beaches, these are some of the, and mending walls are few of the well-known poems of Robert Frost. Here he usually find out the relation between the nature and you can say man. But here this is somehow different kind of poetry which is written by Robert Frost. He has just written this very poem out of the league, because he generally write many of the poems about nature and man's you can say relationship. But here not only the nature you can say nature and man's relationship is a theme, but also here the theme is also man to man relationship. And here a roadside stand, here in this poem he represents the lives, you can say lives of the poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and also the humanity. So not even the you can say sympathy and humanity, he is also showing a kind of empathy, because this is the poem of the 52 lines in which he was just giving a kind of heart wrenching scenario of the poor people and their condition. So I hope the main idea you got from this very context. And let's get started with the first stanza, and we'll come to know about how the roadside stand is the significant title of this very poem. Now, here the question has been arised by Robert Frost that have you ever stopped at a roadside stand? Have you observed there? What you have observed there? So here the first question says that it means roadside stand. If I'll talk in Hindi, then roadside stand means जो भी रोड के साइड में दुकान होती हैं, जहाँ पर स्पेशली इन द हाईवे एरियाज़, जहाँ पर रेर ही कोई दुकान बनती है और वहाँ पर गरीब लोग ये सोचकर दुकान करते कि वहाँ किसी न किसी की गाड़ी ज़रूर रुकेगी और हमसे कोई चीज़ खरीदेगा, देन वी कैन ईज़िली मैनेज आवर यू कैन से लाइव्स. सो आपने कभी वहाँ खड़े होकर देखा है कि
उनकी लाइफ जो है वो किस तरीके की है, कैसी है, हम किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, वट एवर वी थिंक, वट हैव यू ऑब्जर्व्ड. नाउ इन दिस फॉर्म आई विल कम टू नो दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, लाइक कि रोड के पास से एक रोड साइड स्टैंड है. दैट मीन्स उन दुकानों को, उन शॉप को या फिर उन मकानों को जिनमें शॉप्स हैं, उनमें हम उनको क्या बोलते हैं, रोड साइड स्टैंड्स बोलते हैं. So now let's talk about the first line here. The little house was out of a little new shed in front of the edges of the road where the traffic sped. So here we will come to know that there was a little house. वहाँ एक छोटा सा घर है जिसमें एक नया शेड लगा है, यानी कि एक नई छत आई है, रूफ लगवाई है. in front at the edge of the road. It means वो कहाँ है वो दुकान या वो घर, जो भी चीज़ है वो है रोड के बिल्कुल एज पे, बिल्कुल किनारे पे, जहाँ से ट्रैफिक जो है वो स्पीड अप, यानी कि स्पीड जो हो किसकी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ स्पीड, वो स्पीडली जा रहा है. आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि एक रोड साइड स्टैंड के साथ आपकी रोड के साथ आपकी कोई दुकान हो या फिर कोई शॉप हो जहाँ पर आप अपनी डेली रूटीन से कोई चीज़ बेच रहे हो, और साइड में एक हाईवे है, वहाँ पे लोग ठहरते नहीं हैं, सीधे जाते ही हैं. यानी ट्रैफिक यहाँ क्या है, यहाँ ट्रैफिक से व्हीकल्स को बोला गया है, वो अपनी स्पीड से पूरी तेज़ी से जाते हैं. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड मीन्स होता है कोई चीज़ यू कैन से गुजारिश करना या फिर मांगना. सो यहाँ पर रोड साइड स्टैंड जो है वो पैथेटिकली प्लेड है, यानी वो बहुत अजीब यानी दयनीय स्थिति में है, वो शायद कुछ मांग रहा है. यानी कि वो जो इंसान है या रोड साइड स्टैंड किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, उन लोगों के लिए जो उस रोड साइड स्टैंड को हायर करते हैं, वहाँ दुकान या घर बनाते हैं और वहाँ पर वो सामान बेचते हैं. सो इट कुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड. वो वहाँ पर जो रोड साइड स्टैंड पे, यानी कि वहाँ जो इतनी दूर जाकर दुकानें खोलते हैं ऐसे हाईवेज़ पे जहाँ कोई नहीं है, तो वहाँ पर शायद वो ये सोचकर खोलते हैं कि उन्हें कुछ दो चंद के पैसे मिलेंगे, ना कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो सिर्फ एक टाइम के ब्रेड के लिए यानी कि भीख मांग रहे हैं. सो यहाँ पे प्लेड का मतलब है भीख मांगना, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो भीख मांग रहे हैं, शायद उन्होंने जो रोड साइड स्टैंड है वो भीख मांगने के लिए नहीं खोले हैं. सो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, राइट. बट फॉर सम ऑफ द मनी, जैसे कुछ कैश के लिए, कुछ मनी के लिए, हुज फ्लू सपोर्ट, जिनके सपोर्ट से यू कैन से द फ्लावर ऑफ द सिटी इज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. जिनके जो हमारे ये किसान हैं, तबके के लोग हैं, जिनकी वजह से सिटी लोग हैं वो सिंक कर रहे हैं, विदर कर रहे हैं, पेंट हो रहे हैं, उन लोगों उनसे बचाया जा रहा है सिटीज़ को, राइट. बिकॉज जब तक हमारा वर्कर काम नहीं करेगा, हाउ कैन बी द रिच पर्सन बी पॉलिश्ड, नो इट कैनॉट बी पॉलिश्ड. सो नाउ वो आगे कहता है कि द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड. अब जो पॉलिश है यानी कि बिल्कुल वेल मेंटेन जो कार में बैठे हुए लोग हैं, ट्रैफिक कार के बैठे हुए लोगों को बोला गया है, वो बिल्कुल ऐसे माइंड सीधा करके चलते हैं. उन्हें पता है कि उन्हें कहीं नहीं देखना, उनके शीशे कभी नीचे नहीं होंगे कि वो गरीब तबके के लोगों को देखें और एक टुक भर उनसे कुछ चीज़ें ले लें, राइट. सो यहाँ है कि वो बिल्कुल जो है अपने दिमाग को सीधा करके चलते हैं. और इफ़ एवर अ साइड ए मोमेंट, अगर उन्हें कभी ऐसा मोमेंट आ जाता है कि रुकना पड़े, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, वो दिमाग से यू कैन से आउट हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं, लेट्स सी. एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड दैट विद द आर्टलेस पेंट. यहाँ आर्टलेस पेंट बोला गया हम कि रोड साइड स्टैंड को, उनकी घरों को जो बिल्कुल रूखे सूखे से हैं और जिनमें कोई कलर नहीं है, जिन पर लिखे हुए जो साइंस हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं, तो वो उनसे गुस्सा हो जाते हैं कि ये जो घर है या फिर जो इस रोड साइड स्टैंड है वो इस ब्यूटीफुल सीनरी में बहुत आर्टलेस प्रतीत हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है. तो उन्हें वो चीज़ें गुस्सा करते हैं कि गरीब लोग, हम यहाँ पर इस बात को ऐसे ले सकते हैं कि अमीर दुनिया की, यानी कि इस दुनिया में गरीब लोग एक धब्बा है जो अमीर लोगों की सोसाइटी को बिगाड़ रहे हैं. ठीक वैसे ही एक आर्टलेस यानी कि एक ऐसा हाउस जो सिर्फ अपने रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ है, कुछ पैसे कमाने के लिए वहाँ है, वो उस पूरी सीनरी को बिगाड़ रहा है जो रोड साइड होती है. नाउ ऑफ साइंस विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग. और वो इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सॉर्ट हो जाते हैं. आउट ऑफ सॉर्ट मीन्स आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं कि उनको जो एन है, नॉर्थ और साउथ का जो साइन है, वो भी गलत छपे हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कितने भद्दे तरीके से बोला गया है या फिर भद्दे तरीके से पेंट किया गया है. तो वो जो चीज़ देखते हैं वो देखते हैं कि ये गरीब लोग हमेशा धब्बे की तरह हैं, इन्हें हटा देना चाहिए.
ऑफर फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो लोग सिर्फ वाइल्ड बेरीज बेचते हैं, एक वुडन क्वार्ट मतलब एक डब्बा, एक ऐसे डब्बे में वाइल्ड बेरीज बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उन लोगों को तो वैसे ही नॉर्थ साउथ को कोई नॉलेज नहीं होती, तो वो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, तो इन लोगों को तो इस समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और क्रूक गोल्डन स्कैश विद सिल्वर वर्ड्स इज अ काइंड ऑफ फ्रूट कम वेजिटेबल यू कैन से हियर फ्रॉम द यूरोपियन साइड। तो उसमें क्या होता है कि एक येलो कलर का फल होता है जिसकी जो नेक होती है वो जैसे अपनी गॉड होती है यानी घिया होती है, उसकी तरह से वो मुड़ी हुई होती है थोड़ी सी ऊपर से। सो वो गोल्डन से कलर की नहीं, येलो कलर की होती है, तो वो बेचते हैं ये लोग, काफ़ी गरीब हैं। तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से ये लोग अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट द ब्यूटीफुल माउंटेन सी हैं, और जो बाकी ब्यूटीफुल रेस्ट है चीज़ें हैं यहाँ पे, तो हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से उनकी ब्यूटीफुल माउंटेन्स के सीन में दखलंदाजी कर रहे हैं। ना यहाँ हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट अब अपने ऊपर कहते हैं यू हैव द मनी, यू रिच पीपल्स को कहते हैं आप लोगों के पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, अगर तुम कंजूस होना चाहते हो, मीन होना चाहते हो इन गरीब लोगों की तरफ, देन यू वाई कीप योर मनी, तुम लोग अपने पास पैसे रखते ही क्यों हो जब आप लोगों को स्पेंड करने ही नहीं है। गो अलोंग, चले जाओ यहाँ से। द हट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन, कि तुम लोगों को जो ये कंप्लेन कर रहे हो, जो कि तुम्हारी सीनरी को ख़राब कर रही है, दैट मीन्स सो मच एज द ट्रस्टिंग शोर ऑफ वट इज़ अनसेड, लेकिन वो सीनरी जो जिस सीनरी को तुम ख़राब होने से इस घर की वजह से बचा रहे हो, शायद उस घर में या उस रोड साइड स्टैंड में एक दुख भरी, एक ऐसी अनकही, एक ट्रस्ट भरी एक ऐसी स्टोरी है जिसे शायद आप लोग कभी नहीं समझ सकते। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम दुनिया सिटी से दूर, क्यों हम सिटी में नहीं रहते जाके, हम रोड साइड स्टैंड बनाते हैं एक ऐसे झोपड़पट्टी की तरह जिसपे सिर्फ हम कुछ चंद पैसे कमा लें, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। और सिटी मनी का मतलब क्या है, यहाँ पर हम जो शहर में लोग खर्चे करते हैं उनका कुछ हिस्सा यहाँ पे भी खर्च कर सकते हैं, तो उनके हाथ में वो फील हो, टू ट्राई इफ इट नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर वो बताता है कि शायद वो उनकी लाइफ को थोड़ा सा मूव कर दे, उनको पिक्चराइज करते, ताकि उनके जो हाथ में पैसा आए जिससे वो अपनी रोज़ी रोटी तो कमाए ही, साथ में कुछ कॉन्फिडेंस भी लेकर आए। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब जिस खुशी से जो हमारी लाइफ में ठहराव है वो किन लोगों से है, उस गवर्नमेंट से। यहाँ पार्टी का रेफरेंस किस चीज़ से है, गवर्नमेंट से। सो यहाँ कहता है वो गवर्नमेंट जो अभी पावर में है, जो अभी जिस कुर्सी पे जो गवर्नमेंट है, वो हमें इन चीज़ों से दूर करती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कोई घर नहीं है, कोई अपना एरिया नहीं है, और रोड साइड स्टैंड में वो इसलिए घर बना लेते हैं, अपना झोपड़ी बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। सिटी में रहने के लिए आपको कम से कम रजिस्ट्री या फिर आपको रेंट पे रहना पड़ेगा, राइट। तो उनके पास इतना पैसा नहीं है, जो रेंट पे वो पैसे देंगे वो रोड साइड स्टैंड लगा के कुछ चीज़ें बेच के अपनी चीज़ें कमा भी सकते हैं, राइट। सो इसलिए वो वहाँ पर अपना कमाई का ज़रिया ढूंढ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टैंडर्ड सेज इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस ब्यूटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस। अब ऐसी रिपोर्ट थी, ऐसी न्यूज़ थी कभी कि ये जो किन है, यानी कि जो हमारे किन हमारे ह्यूमन बींग के संबंधी हैं, यानी कि रिश्तेदार हैं, जिनकी हालत बहुत पिटीफुल है यानी दयनीय है, आर टू बी बॉट आउट, कि उनको सिटी से निकाल दिया जाए और उनको कहाँ भेज दिया जाए, टू लिव इन विलेज, और उनको बहुत बुरी तरीके से कहाँ रहने के लिए मजबूर किया गया, गांव में रहने के लिए। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और इन लोगों को जो गांव के एरिया के आसपास किसी थिएटर या स्टोर, यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों के पास कोई चारा छोड़ा ही नहीं जाता, या तो वो अमीर लोगों के थिएटर्स और स्टोर्स के सामने जो है वो अपने ठेले लगाएंगे और उनसे अपनी आजीविका कमाएंगे। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, जहाँ पर वो अपने बारे में सोच ही नहीं सकते, उनको सिर्फ 2 टाइम का पैसा कमाना है जिससे वो अपनी ज़िंदगी की भूख मिटा सके। while greedy good doers benefit beast of prey, अब वो ऐसे शिकारियों के हाथों लग जाते हैं जो उनके गुड डूअर्स बनते हैं, यानी कि उनके अच्छे में काम करने वाले लोग बनते हैं, बट वो कैसे होते हैं, ग्रीडी, और इन्हीं के कारण उन लोगों को ऐसे आम बेकार ज़िंदगी जीनी पड़ती है। स्वाम ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, स्वाम मतलब होता है एक छत्ता, एक ग्रुप होता है बीज का, वो उन
अमीर लोगों को वे स्वाम कह रहा है। जिस तरीके से वो किसी हैवी यू कैन से एक आदमी पर हैवी हो जाती है और उसको वहाँ से भगा देती है, ठीक वैसे ही ये लोग भी भगा दिए जाते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, ताकि ये इनके थिएटर्स या स्टोर्स के आगे ठेले लगाएं और ये उनसे कम रेट पे वो चीज़ें खरीद सकें। क्योंकि अमीर तो तभी बनाया जा सकता है जब कोई गरीब हो, किसी और को गरीब बनाया जा सके, राइट। देर आर कैलकुलेटेड टू सू दैम आउट ऑफ देयर विट्स। अब उनको उनके दिमाग से ही आउट कर दिया जाता है। इवन वे कैन वो सोच ही नहीं सकते, टीच तो दूर की छोड़ो, बट बाई टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल द डे। वो कुछ इस तरीके की हैं कि जैसे आप किसी को ड्रग्स दे दो और आप उसको लत लगा दो कि हाँ आप इसी तरीके के हो और आपको पूरी तरीके से इसी में इंडल्ज रहना है, तो ठीक वैसे ही वो उनको बताते हैं कि किस तरीके से आप इस चीज़ में खोए रहो। यहाँ स्लिप का मतलब खोए रहो और पूरे दिन इसी चीज़ों में, इन्हीं कामों में, जो ठेले लगाना एंड ऑल दीज थिंग्स, रोड स्टैंड है, इन चीज़ों में आप ऐसे ही रहो। नाउ डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। ये बहुत पुराना तरीका है उनकी रात की नींद को उड़ाने का। दिन में सोना इट मीन्स रात को नींद नहीं आएगी, ठीक वैसे ही उनको सपना दिखाना पैसों का, जिसकी वजह से वो पागल हो जाएंगे और भागने लगेंगे और अपनी किसी भी चीज़ को बॉदर नहीं करेंगे और वैसे ही सोचेंगे जैसे वो अमीर आदमी कह रहे हैं। Now seconds here next stanza says, sometimes I feel myself I can hardly bear। कई बार मुझे लगता है शायद मैं इन चीज़ों को शायद सहन नहीं कर सकता। The thought of so much childish longing in vain। इतना ज़्यादा पैसे के पीछे जो लोग है, इच्छा है, वो बेकार है। The sadness that lurks near the open windows there। क्या तुम्हें वो सैडनेस दिखाई नहीं देती जो उनकी खुली हुई खिड़कियों से बाहर नज़र आती है। द वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। जो उन दुकानों की जो खिड़की हैं जिनमें से वो अपने सामान बेच रहे हैं, क्या तुम्हें उनमें से वो सैडनेस नज़र नहीं आती जो पूरा दिन वेट करते हैं कि कब कि कोई स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, यानी कि ब्रेक की आवाज़ होती है, एकदम से स्क्वील की एक आवाज़ आती है जैसे खड़े ब्रेक लगते हैं तब आती है ये ऐसी। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार। ये साउंड होती है कार को स्टॉप करने की। वो इस प्रेयर करते हैं कि कब किसी कार के पहिए का ब्रेक लगे और हमारे यहाँ से कुछ चीज़ें वो खरीदें। एंड ऑल ऑफ द 1000 selfish cars that passes just want to inquire what a farmer's prices are, and one did stop but only to plow grass in using the yard to back and turn around। एक आदमी वहाँ रुका, बहुत सारे ऐसे 1000 सेल्फिश लोग जाते हैं जो जिनको उनसे कोई मतलब नहीं है। नाउ वो कहता है कि एक इंसान रुकता है अपनी गाड़ी को, वो मुझसे पूछता है कि इनके प्राइसेस क्या हैं, राइट। जो बेच रहा है, वाइल्ड चेरीज बेच रहा है, उनके प्राइसेस पूछता है और वो चला जाता है। फिर उसके बाद एक और रुकता है, वो रुक कर कुछ नहीं करता, सिर्फ वो घास को ख़राब करता है, यानी कि वो अच्छी घास है उस पर से वो अपनी यू टर्न ले घुमा रहा होता है कार को और उस घास को ख़राब कर दिया और वो वहाँ से चला जाता है। जो थर्ड वन है वो रुकता है और वो कुछ देर तक पूछता है। एंड हियर द टू कपलेट सेज एंड अनदर टू आस्क। जो दूसरे वाला तीसरे वाला जो है वो पूछता है, दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। क्या आप गैस का गैलन, यानी कि इतनी गैलन एक क्वांटिटी होती है, यूनिट होती है गैस की, तो गैस मिल जाएगी आपके पास। दे कुड नॉट दिस क्रॉसली हैड दे हैड नन डिडंट इट सी। क्या वो यहाँ रुके हैं तो वो क्या गैलन ऑफ गैस लेने के लिए रुके हैं? उन्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ क्या बेच रहे हैं हम? शायद उन्हें दिखाई ही नहीं देता, राइट। नाउ इन कंट्री मनी यहाँ बार बार में कंट्री मनी क्यों बोला जाता है? यानी कि जो विलेजेस एरिया है वो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं कि हमें इतना पैसा मिल जाए देन वी विल बी हैप्पी, राइट। देन द कंट्री स्केल ऑफ गेन। और एक कंट्री स्केल है जो उनको गेन करना है, एक पैसा उनको गेन करना है। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। I cannot help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I came back into the scene I wonder how I should like you to come to me and offer put to me gently out of my pain। Now यहाँ लास्ट स्टेंजा में ये कहते हैं कि ऐसा कोई कंट्री मनी नहीं है, ऐसा कोई स्केल नहीं है जिसमें लोगों के स्पिरिट को, आत्मा को ही कुचला जा सके, राइट। तो यहाँ पे वो ऐसे बात कर रहा है कि जो पुअर लोग हैं, काश कोई तो उनके लिए कोई वॉइस रेज करे, कोई तो उनकी बातें सुने। और शायद मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ किसी ग्रेट रिलीफ तक कि मुझे सुकून हो
और मैं सोचता हूँ कि इन लोगों के लिए कोई एक ऐसा इंसान आए या पीपल हो, लोगों के अंदर ऐसी जागृति हो कि वो इन लोगों के बारे में सोचे और इन लोगों के हाल के बारे में सोचे और इनका बहिष्कार ना किया जाए, इनको वॉलेंटली थ्रैश ना किया जाए। और ऐसा सोचने के बाद जिस दिन ऐसा दिन होगा उस दिन मैं अपनी गहरी नींद से जागने के लिए तैयार हो जाऊंगा। यानी कि जो मुझे दुख हो रहा है उसमें मुझे सिर्फ एक गरीब आदमी ही जगा सकता है, जब वो ये कहेगा कि हम सभी सुखी हैं। सो यहाँ पर लास्ट लाइन स्टैंजा में हमें पता चलता है कि हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो काफ़ी अटैच फील कर रहे हैं। किन से? उन सभी वर्कर्स से जो वहाँ काम करते हैं, रोड साइड स्टैंड लगाते हैं और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी भर वहाँ बैठे रहते हैं, जबकि अमीर लोग सिर्फ अमीरी दिखाते हैं और उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। सो हियर वी हैव 2 ऑफ द यू कैन से वर्ड मीनिंग हियर, दैट वन इज़ क्वार्ट्स विच मीन्स कंटेनर ऑफ द बॉटल्स, जिसमें हम वाइल्ड चेरीज रखते हैं। स्क्वैश होता है काइंड ऑफ वेजिटेबल, मैंने कहा था कि एक काइंड ऑफ गोड, तो वेजिटेबल होती है, थोड़ी बहुत घिया जैसी लगती है। लेकिन होती येलोइश कलर है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द पोम एंड हियर वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेज द सिटी फोक, यानी जो शहर के लोग हैं, वो ड्रॉ थ्रू द कंट्री साइड हार्डली, जो कि गाँव में शायद ही कभी जाते हैं, पेड एनी नीड टू हीट टू द रोड साइड स्टैंड और टू द पीपल हु रन इट। वो शायद ही कभी सोचते होंगे कि जो साइड में जो रोड साइड स्टैंड लगा के खड़े हैं उन लोगों के बारे में, और जो इनको चलाते हैं उनके बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। इफ़ इट ऑल दे डिड, अगर वो ऐसा ही करते हैं, इट वॉज टू कंप्लेन, विच लाइन्स ब्रिंग दिस आउट, वट वॉज देयर कंप्लेन अबाउट। तो हम अगर इस चीज़ की कंप्लेन के बारे में सोचें कि वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो कौन सी लाइन है इस पूरे स्टैंजा में से, पूरी लाइन पोम में से, जो इस बात को दिखाती है कि वो अपने इस कंडीशन के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। अब आपको इस पोएम में से सबसे ज़रूरी चीज़ है वो लाइन्स निकालना है, वो स्टैंजा निकालना जिसमें से वो ऐसी शिकायत करते हैं। सो इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट इन इट देन यू कैन टेक मी हेल्प आउट, सो बट यू हैव टू ट्राई इट वंस फॉर योर ओन। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज सेज व्हाट वाज द प्ली फॉर द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। नाउ अब वो फोक से क्या, उनकी क्या यू कैन से कंडीशन है, जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं, आप वो भी बताएंगे। थर्ड इज गवर्नमेंट एंड द अदर सोशल सर्विसेज एजेंसीज अपीयर टू हेल्प द पुअर पीपल बट एक्चुअली डू them no good. Peek out of the word phrases that poet uses to show their double standards. आपको इसमें से जो मीनिंग है वो ऐसे मीनिंग जो यानी कि जो कटाक्ष कर रहे, सटायर कर रहे हैं गवर्नमेंट पे भी और सोशल सर्विसेज पे भी, जो लोगों का सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं, पुअर पीपल का सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे कुछ कह नहीं रहे हैं एंड एक्चुअली वो उनके लिए कुछ कर भी नहीं रही हैं। सो उन ऐसे चीज़ के ऊपर जो उन्होंने कटाक्ष किया, उनके लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं। यू हैव टू फाइंड दैट आउट, जो उनके डबल स्टैंडर्ड को दिखाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाट इज़ इट द वे। वो चाइल्डिश लॉन्गिंग कौन सी है और जो वो वेन में है क्यों, यानी कि वो बेकार क्यों है, वो बच्चों जैसे ज़िद कौन सी है और वो क्यों बेकार है, ये बात आप इस पूरे पोम को दोबारा पढ़ के पता लगाएंगे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फील होती है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो द फिफ्थ पॉइंट हियर सेज विच लाइन्स टेल्स अस अबाउट द इनसफरेबल पेन दैट द पोएट फील्स एट द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पुअर। यहाँ कौन सी लाइन ऐसी है जो आपको बताते हैं कि कुछ लोगों का पेन ऐसा अनबियरेबल है कि वो उनकी कंडीशन को, रूरल पुअर कंडीशंस को अच्छे से दिखाता है। सो आपको वो लाइंस जो है वो डेवलप यू कैन से ब्रिंग आउट करनी है। सो आई हैव जस्ट डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस विद यू, so I hope this has been clear to you, but I really want to make you confirm that there is also a kind of rhyme scheme here. What is the rhyme scheme here? That is AABB. Here in the first and the last two words shed and sped, this rhyming with the ad, and plaid and bread is also AAB, sorry AABB not, is AA and then AA, sport and then after that faint ahead and source, फिर है B C C and B. सो आपके पास क्या है, ए ए बी सी सी बी।
सो दिस इज़ द राइम स्कीम। सो हम यहाँ पर एक सटायर कर सकते हैं, सटायर कर रहे हैं हम उन रिच लोगों पर, उन रिच डबल स्टैंडर्ड्स पर जिनकी हमें यू कैन से काइंड ऑफ लाइट दिखाई जाती है, बट हम उस रोशनी तक पहुँचने के लिए हम अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। और स्पेशली ये वो चकाचौंध है जिसकी तवज्जो में एक आम आदमी आना चाहता है, लेकिन जो अमीर आदमी है वो उन आदमियों को सिर्फ वहीं तक रखना चाहते हैं जहाँ तक वो उनकी सेवा कर सकें, यानी कि उनको सर्विस प्रोवाइड कर सके, ना कि उनके कंपटीटर बन सके। सो लोगों ने एजेंडा बना लिया है कि किस तरीके से वो उनका दमन करेंगे और किस तरीके से वो उनको डिप्राइव करेंगे और उनकी प्लाइट कंडीशन का फ़ायदा उठाएंगे और किस तरीके से उनको और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। सो हियर इन दिस poem we will come to know all about all these things. I hope this has been clear to you, and each and everything, and bring out all these difficult word meanings because it has symbolism in it, and metaphorically many things has been said indirectly to the social, political and religious manners, because यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो मेनली कंसर्न है ह्यूमन प्लाइट के ऊपर कि ह्यूमन की जो कंडीशन है वो बहुत बदतर हो गई है, और अगर वो ज़्यादा बुरी है यानी कि कंडीशंस बहुत ख़राब हो चुकी है, देन हाउ इट कुड बी पॉसिबल दैट कंट्री विल ग्रो। नो, अगर हमारे गरीब तबके के इंसान ग्रो नहीं करेंगे तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल दैट वी विल ग्रो। नो, वी कैन नॉट डू दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम, एंड जनरली वी फाउंड द complaint of our Robert Frost towards the aristocratic scenarios which they have just bring out a car and then this you can say ride it slowly, and after that they will not give any kind of heed, ध्यान नहीं देते हैं उन गरीब तबके के लोगों पर जो वहाँ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ दैट वो पिटीफुल किन भी बोलता है उन गरीब लोगों को, क्योंकि वो किन किस लिए हैं, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे का क्या है, रिश्तेदार होता है, और उन्हीं को गवर्नमेंट को एक पार्टी बोलकर उनकी पावर को सटायर किया है कि वो किस तरीके से उन गरीब तबके के लोगों की जो लाइफ है उनसे वो मूवमेंट छीन लेती है, उनका जो रियल हैप्पीनेस है वो छीन लेती है, बल्कि उनको ये बताती है कि किस तरीके से आपको रात की नींद उड़ानी है और दिन में सोना है। रात में नींद उड़ाना और दिन में सोने का मतलब क्या है कि वो दिन में पैसों के पीछे भागेंगे और रात में उसी के बारे में सोचेंगे, राइट। तो इस तरीके से है कि हमें जो सपना दिखाया जाता है वो होता है मनी थीस्ट का। अब यहाँ पे सारी चीज़ें एक मनी से रिलेटेड हैं कि सारी चीज़ क्या मनी हो गई है। तो यहाँ हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो उन लोगों पर यू कैन से कंप्लेंट करता है कि जब आपके पास कोई पैसा है तो आप उसे खर्च क्यों नहीं करते हो, और स्पेशली उन लोगों पर खर्च क्यों नहीं करते हो। आप लग्जरीज कमा रहे हो, ठीक है, आप उसमें से कुछ हिस्सा इन गरीब तबके के लोगों को भी दे सकते हो। अगर आप ऐसे हो और नहीं देना चाहते हो, मीन हो, देन देयर इज़ नो बेनिफिट। यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है आपके पैसे कमाने का, आपके पास पैसे होने का। सो वी ऑल हैव टू टेक ऑल दिस थिंग्स सो काइंड ऑफ सीरियसली कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस पेन को इतना ज़्यादा एम्पैथाइज कर रहा है, अपने अंदर सहन करके उस चीज़ को हमें बता रहा है कि किस तरीके से हम उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिनको कंट्री मनी का यानी कि सिटी मनी का सपना दिखाया जाता है कंट्री मनी के कॉन्ट्रास्ट में। यहाँ कंट्री जो है वो कंट्री साइड से है, यानी विलेज एरिया है, रूरल एरिया से बिलोंग चीज़ें करती हैं। सो वो कहता है कि लास्ट में जब कोई भी दिन ऐसा आएगा जब इन गरीब लोगों की ज़िंदगी बहार हो जाएगी, देन वो दिन मेरे लिए सबसे रिलीफ का होगा, क्योंकि तब मुझे गरीब तबके के लोग जब मुझे ये कहेंगे दैट एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ आप उठ सकते हो अपने दर्द में से, तब मैं उठूँगा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की होगी कि किस तरीके से लोग खुश रहेंगे जब हम जैसे लोग जो रिच हैं उनको उनकी जगह उनको मूर्ख ना समझ के, उनको धब्बा ना समझ के एक अच्छे से ट्रीट करेंगे उनके साथ और बिहेवियर अच्छा रखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम। आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू। विल मीट अबाउट दिस वेरी पोम इन द नेक्स्ट वीडियो with the next time. Thank you so much. Have a nice day.